Praise the Lord. We all again greet you in the name of our Lord Jesus Christ. सबका स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं. And we have got Reverend Bhambal who met me last week. He has come. और हमारे बीच Graphicon B ना. और हमारे बीच रेवरेंड भांबले जो पासवान को पिछले हफ्ते मिले थे वो यहाँ पे ग्राफिकॉन में रहते हैं. Welcome them in the name of our Lord Jesus Christ. तो उनका स्वागत हम करते हैं. We have got three sisters. They will also enter to me. Nandedgaon. Nandedgaon is almost very far. So these three sisters has come from Nandedgaon. और हमारे बीच तीन बहन भी है जो नांदेड़ गांव से आए हैं यहाँ पे. उनका भी हम स्वागत करते हैं. And Nandedgaon is almost 30 kilometers, I think so. 30-35 kilometers. They have come at 10 o'clock sharp here. और 35 किलोमीटर तक है यहाँ पे और 10 बजे यहाँ पे सवेरे आए थे. So we thank God for wonderful day. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत दिन And के today, लिए. as the worship was going on, और आज जैसे आराधना हो रही थी so the Lord was telling that somebody was having headache. और प्रभु कह रहा था किसी को सर दर्द हो रहा है. The Lord was showing me that one sister was having headache today. और प्रभु पासवान को दिखा रहा था कि एक बहन को जो है And सर दर्द हो रहा she था. has been troubling असं रात्री पण त्रास होतो. और रात भर जो है उनको तकलीफ होती थी. असं भीतीचा आत्मा वगैरे दडपणा वगैरे पडतात. The Lord was showing me that as I was sitting. और प्रभु पासवान को ये सारी बातें बता रहा था जैसे वो वहाँ पे बैठे थे. आणि परमेश्वर गॉड तू ईश्वर विश्वास ठेव. परमेश्वर तुला ह्याच्यातून बंधनातून मुक्त करणार. And we thank God, the Holy Spirit is in move. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा जो है कार्य कर रहा है. And it is going to work. Bible is telling those who are holy, let them be holy. और पवित्र शास्त्र ये कह रहा है कि जो पवित्र है उन्हें और पवित्र Those who बनाना. are wanted to be righteous, let them be more righteous. और जो धार्मिक है और धार्मिक हो Those who जाए. want to be unholy, let them be more unholy. और जो अपवित्र है उन्हें और भी Those who अपवित्र want to होने be more दो. wicked or cruel, let them be more wicked and cruel. और जो क्रूर है उन्हें और भी क्रूर होने दे. Because as I told, the Lord was telling me that 21 onwards, the day of the marriage is going to be ready. और जैसे प्रभु पासवान से बात कर रहे थे कि 2021 से जो है जो शादी का जो कार्य है वो उसकी तैयारी होने वाली है. Prophecies, as I told you also, early deaths will be there. और जैसे पासवान ने कहा कि जो मृत्यु है जल्दी आएगी. And there will be people of God will be staying, they will not die, but they will backslide in the spiritual life. और जो प्रभु के लोग हैं वो रुकेंगे नहीं लेकिन वो गिर जाएंगे. And you will not understand how they will fall. और हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कैसे गिर. With the word of God only they are going to fall down. और प्रभु के वचन के द्वारा ही वो नीचे गिरेंगे. When we go for funeral, और जब हम जो फ्यूनरल के लिए जाते generally हैं, Christian funeral, जो मसीह जो फ्यूनरल होता है उसके लिए जब हम we जाते हैं sing songs. Which song is that Marathi? नीले आसमान के पार तो हिंदी है. In उपासना संगीत one song is there. तेज. हाँ, they will sing that song very nicely. और हम एक मराठी गीत बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं. But the Bible is telling the day of the Lord. लेकिन पवित्र शास्त्र ये कहता है कि प्रभु का जो दिन है, that will be the day of the Lord, right? When we die. और जब हम मरते हैं तभी प्रभु का दिन होता है. The day of the Lord after the judgment of God. और प्रभु का दिन और फिर उसके बाद न्याय प्रभु का. So but we are going to sing that we are going to meet our prayer Jan. आपण भेटणार आहे. तुम्ही काळजी करू नका. आपण we are giving all these false prophecies or false teaching on the day of funeral. और फिर फ्यूनरल के दिन हम क्या करते हैं, ऐसे गलत जो है प्रोफेसिस करते हैं जैसे कि हम हमारे प्रियजनों से मिलेंगे और उन सब से. There are two funerals I wanted to tell. और दो फ्यूनरल के बारे में पास One young person, married person committed suicide. एक जो जवान व्यक्ति उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली. So where that person will go? तो वो व्यक्ति कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? नरक में जाएगा. The pastor was so very Pentecostal pastor. और वो पासवान और पेंटिकोस्ट के पासवान थे. He Pentecostal pastor, he preached. और जो पेंटिकोस्ट के जो पासवान थे That उन्होंने these young संदेश boys ऐसा दिया. believe, those who believe they will go to Jesus.
उन्होंने ऐसा कहा कि जो विश्वास रखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के That पास person has जाएंगे। committed suicide, young, two small children and wife, young widow. और इस व्यक्ति ने जो है आत्महत्या की, उनकी बीवी और 2 बच्चे भी But the हैं। pastor is telling his wife, do not worry. The Pentecostal pastor, you are going to meet him. I think wife will also be in hell. That's why you must be telling. और ये पासवान जो है उनकी बीबी को ये कह रहे कि चिंता ना करो, तुम स्वर्ग में ही मिलेंगे, लेकिन पासवान कह रहे कि वो So बीवी में नरक में। the day of the Lord is so dangerous. तो प्रभु का दिन इतना I will खतरनाक give you है। some verses today. और पासवान आज कुछ Before वचन going to the देंगे। message. संदेश पे जाने से पहले Secondly, one pastor was preaching. Again, he was very church is around 1500 in Pune. और एक पासवान वापस संदेश दे रहे थे जिनकी कलीसिया That में person was 1500 having से at लोग least थे। 5 wives. No, the person who died was having 5 wives. और जो व्यक्ति मरा उनको जो है 5 पत्नियां थी। First wife got married. पहली He पत्नी की married, शादी- then she left. और फिर पहली शादी के बाद Second उन्होंने got छोड़ दिया। divorce. और दूसरा तलाक हुआ। Third was a Muslim girl. और तीसरी एक मुस्लिम Then स्त्री। again the second came in his life. और फिर जो दूसरी बीवी थी वापस आई Again the उनके जीवन में। fifth came. और फिर 5वीं आए। And pastor has given a wonderful message on the sermon. लेकिन पास्टर ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। If I would have preached in both the message, funeral message, पासवान ने अगर वहाँ पे संदेश दिया I would have told this person is in hell now. तो वो ऐसे कहते थे कि ये व्यक्ति अभी नरक में है। Before the judgment of God, there is a place called Sheol. और न्याय के पहले As जो per एक जगह है सिय्योन। I think Isaiah 14 chapter. और ऐसे की किताब में लिखा है 14वें अध्याय में, The devil is torturing them before the judgment of God. और न्याय से पहले जो है शैतान उन्हें और ज्यादा पीड़ा दे रहा If है। you read Isaiah 13 chapter 9 onwards, the day of the Lord is so cruel. और आइज़ाया का 13वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु का जो दिन है बहुत ही खतरनाक Before है। going to the message, I will give you some verse. We will go in a hard way. और So the day of your marriage, or the day of the marriage, the people on the highways and byways, they will be ready for the kingdom of God, but it will be very difficult for us to be prepared for the marriage day. और जो शादी का दिन था जहाँ पे लोग उस हाईवे पे हैं, Quickly, we'll read these verses. 3-4 verses. We'll read that Isaiah 13 chapter 9 to 13 verse. और आइज़ाया 13वां अध्याय 9 से 13 हम पढ़ेंगे। Then Zephaniah 1, 14 and 16. Somebody will remove that. और कोई तो जफानिया 1 14 से 16 तक निकाल के रखेंगे। Somebody read Isaiah. देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के देखो साथ यहोवा आता का वो दिन कितना आनंद से है। आनंद है, रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और उजाड़ डालने वाला है। अपना गॉड कितना क्रूएल है, और पृथ्वी को क्या करने वाला है, उजाड़ डालने वाला है। और पापियों को उसमें से नष्ट करे। पापियों को क्या करने वाला है, he is going to destroy the sinners. और जो पापी उनका नाश करने वाला है। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा बस, now हो we'll जाएगा। somebody read Zephaniah 1:11 to 16. और जफानिया 14 to 16, and somebody remove Joel 2nd chapter 1 and 2 verse. और जोएल की किताब 2रा अध्याय 1 और दूसरा भी और पहिला अध्याय 14-15. परमेश्वराचा मोठा दिवस समीप आहे, तो येऊन ठेपला आहे, वेगाने येत आहे, वेगाने ऐका, येत आहे. परमेश्वराचा दिवस तेथे वीर दुःखाने ओरडत आहे. हा संतापाचा दिवस आहे, दुःखाचा व क्लेशाचा दिवस आहे, विध्वंसाचा व उजाडीचा दिवस आहे, अंधकाराचा व उदासीनतेचा दिवस आहे, अभ्राचा व निबिड अंधकाराचा दिवस आहे. जोएल 1:14-15 आणि 2:1-2. उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार जोएल ये होय. फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर 1-2. सिय्योन में नरसिंह फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है। यहोवा दिन अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है।
जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। दूसरा अध्याय केला second chapter and then Malachi will read 4:1 मलाकी 4:1 हम पढ़ेंगे। Malachi is the last book of the Old Testament. भट्टीसारखा तप्त दिवस येत आहे, भट्टी सारखा तप्त दिवस येत आहे, सर्व गर्विष्ठ व सर्व दुराचारी धसकट बनतील। तो येणारा दिवस त्यांना जाळून टाकेल, त्यांचे मूळ फांदी वगैरे काहीच राहू देणार नाही, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो। आणि तिसरा अध्याय 2 आणि 3 वचन, त्याच्या आगमनाच्या दिवशी कोण निभावे? त्याच्या आगमनाच्या दिवशी द कमिंग ऑफ द लॉर्ड वी आर सो टेलिंग द टुमोरो विल बी सो नाइसली। तो प्रगट होईल तेव्हा कोण टिकेल? कारण तो धातू गाळणाऱ्याच्या अग्नीसारखा, पळटाच्या खारासारखा आहे। रुपे गाळून शुद्ध करणाऱ्यासारखा तो बसेल व लेवीच्या वंशजांना शुद्ध करील, त्यांना सोन्या रुपयाप्रमाणे शुद्ध करील, मग ते धर्माने परमेश्वराला बलि अर्पण करतील। बाइबल इज टेलिंग देयर इज नोबडी राइचियस। और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि कोई भी धार्मिक नहीं है। यू नो बिग मैन ऑफ गॉड, और बड़े बड़े जो प्रभु के सेवक, व्हेन वी सी देम, और जब हम उन्हें देखते हैं, you know, we cannot compare ourselves, our righteousness and their righteousness. तो Agree? हम Do you जो है agree? तुलना नहीं कर सकते हमारी धार्मिकता और उनकी धार्मिकता को लेकर। If you read Zechariah 3rd chapter 1 to 3 verse, जकरिया 3 अध्याय 1 से 3 अगर हम पढ़ते हैं, a man of God, Joshua was there, और जोशुआ जो प्रभु का सेवक था, and God rebuked him, the devil. और God rebuked the devil और फिर प्रभु ने जो है शैतान को ताड़ना दी, because he was accusing the man of God, Joshua. Can we compare with Joshua after Moses? और क्या शैतान क्या कर रहा था कि जोशुआ की जो है निंदा कर रहा था हाँ। प्रभु के सामने, तो क्या हम जोशुआ के साथ जकरिया। तुलना कर सकते हैं? It is before Malachi 1 and this thing. मिला? वाचा हिंदीमध्ये. Zechariah ह्याचा तिसरा अध्याय 1 ते 3 वचन. तेव्हा मुख्य याजक यहोशुआ व परमेश्वराच्या दिव्यदूतासमोर उभा आहे व त्याचा विरोध The chief priest Joshua was standing in front of the angel. और जो महायाजक थे जोशुआ, वो देवदूत के सामने खड़े थे। त्याचा विरोध करण्यासाठी सैतान त्याच्या उजवीकडे उभा आहे असे त्याने मला दाखविले। खाली. मग परमेश्वर सैतानास म्हणाला, अरे सैताना, परमेश्वर तुला धमकी देव, यरूशलेम आपलीशी करणारा परमेश्वर तुला धमकी देव, हा अग्नीतून काढलेले कोणी नव्हे काय? यहोशुआ मलिन वस्त्रे परिधान करून त्या दिव्यदूतापुढे उभा होता। यहोशा मलिन कपडे घालून मलिन कपडे. तर we can see the spiritual clothes of Joshua was filthy. और जो आत्मिक वस्त्र थे जोशुआ के, वो मैल थे। We cannot find the drawbacks about Joshua. तो हम जो है कोई भी जो है ऐसा नहीं देखते जीवन In the में Bible it जोशुआ is के। written, right? पवित्र शास्त्र में ऐसा Nothing लिखा is है, written against Joshua. कुछ भी जोशुआ के खिलाफ नहीं लिखा God है। had chosen him to take the people of God into the promised land. और उन्हें चुना गया था ताकि उनके लोगों को लेके वो उस जो वचन दिया Joshua हुआ is telling, स्थान पे I लेके जाए। and my family are going to serve the Lord. और यीशु ये कहता है कि मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करूंगा। But who's standing there on the right hand side of when the Joshua was standing in front of the angel? और जब जोशुआ के दाहिनी ओर कौन खड़ा था जब वो देवदूत के सामने खड़े थे? The devil was standing. तो शैतान वहां पे खड़ा And था। as per Revelation, you know that day and night the devil is standing in front of the Lord and he is accusing his brethren. और प्रकटीकरण में हमने पढ़ा है कि दिन और रात शैतान जो है प्रभु के सामने खड़े रह Today के you हमें and I, we cannot say we are spiritually high standard people.
तो आज हम जो ये नहीं कह सकते कि आत्मिक रूप में हम बहुत बड़े बहुत अच्छे हैं। We cannot say that, we are so much, but as I was meditating in the presence of the Lord, और हम ऐसा नहीं कह सकते, और जैसे पासवान इसके ऊपर मनन कर रहे God थे, is showing me very, very clearly whether you like or not like. और प्रभु बहुत साफ रीति से पासवान को ये बता रहा है, ये बात अगर हमें If अच्छी you are लगी, getting हमें up अच्छी लगी। early in the morning and you are praying, or night you are doing that, you are doing the ritual things. और अगर आप सवेरे जल्दी उठ के प्रार्थना करते या देर रात तक प्रार्थना करते तो ये परंपरा के At the हिसाब से आप कार्य particular कर रहे time, हैं। we can see the Muslim people also do the namaz 5 times. Particular 5 times they will do very sincerely, and we can see some marks on the forehead, some of the Muslim people. और हम मुस्लिम लोगों को भी देखते हैं जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो समय के हिसाब से नमाज को पढ़ते हैं। Before I am going to my message, let me tell you all these things what God has been telling me in the last days what is going to happen. The day of my marriage is coming. और संदेश पे जाने से पहले जो ये सारी बातें पासवान बताना चाहते हैं जो प्रभु ने उनसे कही है, So take this message very seriously, even we are few people. और बहुत गंभीर रूप में इस संदेश को हमें लेना है। Because हालांकि हम on the बहुत highways हैं, and byways, people like prostitute, people like, poor people, God is going to save them, and they are going to be the leaders, and they are going to go forward in the spiritual life. क्योंकि जो हाईवेज पे जो लोग रुकते हैं, जो भिखारी लोग, जो वेश्या लोग, उन्हें प्रभु बचाएगा और वो फिर प्रभु की जो है सेवा And करेंगे, they will be dressed for the marriage of God. और फिर उन्हें जो है आशीष मिलेगा प्रभु के शादी के लिए। So you prepare yourself for that. और हमें जो है As तैयारी God करनी was है showing that इसके you लिए। must be telling that before my sleep, I am reading the Bible, I am praying, and then I am telling you that is the ritual. और अगर ऐसे कहते हैं कि हम जो है सोने से पहले पवित्र शास्त्र पढ़ते या फिर उठने के बाद पवित्र शास्त्र पढ़ते, तो ये परंपरा के हिसाब से As Pastor Adbole from Nasik always he tells, the gods of Hindus are dead. और पासवान अडबोले जो नासिक से वो हमेशा कहते हैं कि जो हिंदू के जो So the देवता है वो worship मरे of हुए those हैं, people are true. लेकिन उनकी जो आराधना है वो They will सच्ची be है। barefooted in Zensar also in Kavita's office for 9 days. Without chappals they will come. और नवरात्रि के दिनों Big, में big जो ये बड़े बड़े engineers who are drawing 3 lakhs rupees per month, they don't have a shame of God. जो Their बड़े God. बड़े इंजीनियर्स लोग होते हैं नवरात्रि के दिन बिना चप्पल के जो है कंपनी में आते हैं, उन्हें But कोई today भी you शर्म and नहीं me आती। to take the carry the Bible, it's very, very shameful for us. लेकिन आज Carry the हमें Bible जो- and come. We bring the Bible in the mobile. लेकिन आज हमें जो है पवित्र शास्त्र लेके घूमने भी बहुत शर्म आती है। हम क्या करते हैं, But- मोबाइल में पवित्र But these शास्त्र people को will लेके। be bare-footed. They will go everywhere. लेकिन ये जो लोग हैं ये नंगे पैर जो है हर जगह पे जाते Why हैं। I'm telling you, it is the Holy Spirit is telling me that you are the ritualist person, like method is, you are following the method. और फिर प्रभु ये कह रहा है कि हम जो है परंपरा के हिसाब से चलते हैं, जो methods- But you should have the relation of Jesus Christ every day. लेकिन हमें जो है रिश्ता बनाए रखना है प्रभु As यीशु मसीह you के and साथ। your wife and your children are sitting and talking and having coffees, और जैसे हम हमारे बीवी बच्चों के साथ जो है चाय पीते हुए right? When we बातें go to करते हैं, hotel, we have sit and we eat bun maska chai or whatever it is. और आप जब होटल में जाते हैं और फिर बनमस का चाय ये सारी चीजें Reading खाते the हैं, word of God, and that is the ritual every day you are doing. But do you have relation talking with Jesus every day? और हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन ये परंपरा के हिसाब से करते हैं, God लेकिन क्या was हमारा रिश्ता है? talking to me like this. और प्रभु पासवान से In ऐसे this बातें कर lockdown रहा है। period, my people are just, for name's sake, they wanted to read the Bible. They just wanted to pray. That is the ritual. But they are not understanding why they are alive in this world. और सिर्फ नाम के लिए जो है मेरे लोग पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, परंपरा के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये They are नहीं not पता sitting कि in वो my क्यों presence जीवित हैं। and they are not hearing my voice. और वो मेरी उपस्थिति में नहीं बैठ रहे और मेरी आवाज को नहीं If they सुन will रहे। hear the voice, I am going to talk with them. और अगर वो मेरी आवाज को सुनेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, And I will use them in this problem of in this situation. और फिर मैं उनका उपयोग करूंगा इस परिस्थिति में। Church, I wanted every soul. As I was sitting, I don't want to have pride in me. और जैसे पासवान बैठ रहे थे, वो चाहते हैं कि हर एक आत्मा उनमें घमंड नहीं होना I don't want to चाहता। have pride in me. और पासवान But ये I उनमें wanted घमंड every नहीं आना believer चाहता, who's sitting here लेकिन पासवान ये चाहते हैं हर विश्वासी जो operate यहाँ the पे बैठे gift of the हैं, Holy Spirit in their lives. वो अपने जीवन में जो है पवित्र Now this आत्मा sister के has साथ come उसका first कार्य time. I करें। don't know whether she is having headache. I don't know whether she is being tortured in dreams.
I don't know anything about her life, but the Holy Spirit has to talk with you and they have to speak. That is the work every believer has to do. और ये बहन जो पहली बार यहाँ पे आई, लेकिन उनके बारे में पास्टर को कुछ भी नहीं पता था कि उनका सर दुख रहा है। I should not do. I wanted the youngest person from our church. They should get up. Today there is a person come. God is showing me this is the problem and this is the solution from the Lord. और पासवान ये चाहते हैं कि कलीसिया के सबसे जवान व्यक्ति जो है वो उठ के ये भविष्यवाणी करे और ये बात उन्हें I wanted प्रकट that करे। you should go, 10 times anointing more than me. और पासवान ये चाहते हैं कि हर एक जो सभासद है 10 गुना ज्यादा And then अभिषेक only के we साथ can आगे see, बढ़ते जाए। the church growing in the spirit, not in flesh. और उसी वक्त जो है हम कलीसिया को बढ़ते हुए देखेंगे आत्मा में, ना If कि these gifts are शरीर not में। operating in the churches are dead. और अगर ये जो दान है अगर कलीसिया में कार्य नहीं करेंगे तो फिर कलीसिया जो है You मृत्यु and के I समान will है। need to operate every gifts of the Holy Spirit. और हमें और आपको जो है पवित्र आत्मा का हर दान So का now जो we है are going उपयोग to करना है। come to our message. तो हम संदेश की ओर बढ़ते हैं। Which chapter we are going studying about? Hebrews 13 chapter. किस अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे? 13 chapter 12 verse we are going to read now. और आज हम इब्री 13-12 को हम पढ़ेंगे आज। From 1 to 11 we have studied. 1 से 11 तक हमने जो है 12 मनन onwards we किया are है going to study now. और फिर अभी आज 12 से आगे जो है हम मनन करेंगे उसके ऊपर। Read 13:12. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। 13 अध्याय 12-13 वचन आपण वाचूया. मराठी. म्हणून येशूनेही स्वरक्ताने लोकांना पवित्र करावे म्हणून वेशीबाहेर मरण सोसले. तर आता आपण त्याचा अपमान सोशीत तळाबाहेर त्याच्याकडे जाऊया. We can see the Old Testament is the shadow. और हम देखते हैं कि पुराना करार जो है एक परछाई है। And in the Old Testament we can see the animals were offered out of the gate, outside the gate, not in the place of the holy or most holy place, but it was a rejected place, or it was offered at the out of the gate. What you call? वेशीच्या बाहेर. और फिर हम पुराने करार में ऐसे देखते हैं जो बलिदान होता था पशु और पक्षी का, वो जो है बाहर के जगह पे होता था, ना कि अंदर के पवित्र स्थान पे होता था। Because the sinners were not allowed in the holy place or most holy place. क्योंकि जो पापी थे उनको अनुमति नहीं थी पवित्र और अति पवित्र They were स्थान में जाने slaughtered के in लिए। the outside the gate. और वो गेट के बाहर ही जो है उनका बलिदान Or दिया where the जाता था। children of Israel were staying outside that Veshi in Marathi called, but in English what they call? Outside the gate, right? और फिर जो गेट था उसके बाहर ही जो है इजराइल के लोग वहां पे रहते थे। And that was the meaning, and Christ did the same thing. Outside he was crucified. और ये उसका अर्थ था, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया कि बाहर जाके But the priest used to- क्रूस पे चढ़ाया गया। But the priest used to take the blood of the animals and come into the most holy place and sprinkle that place blood there. और महायाजक क्या करते थे, उस बलिदान दिए हुए पशु का जो है खून लेके अति पवित्र स्थान पे आके वहां पे And छिड़कते थे। then because of the blood which was sanctified in that most holy place, और उस लहू की वजह से जो वहां पे जो है शुद्ध किया गया people था, of Israel were getting forgiveness for how many years? और फिर इजराइल के जो लोगों को क्षमा मिलती थी कितने सालों तक। ऐकू ना, त्याला बाहेर नेता का तिकडं अच्छा ह्याच्या बाहेर न्या. See, this message is very, as Hebrews I'm teaching the last chapter. It is significant as a believer how we should be a good believer. और जैसे इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं हिब्री की किताब के ऊपर, तो ये हमारे जीवन को दर्शाता है, Because it is related with the sacrifice, blood of Jesus and redemption. क्योंकि ये जुड़े रखता है प्रभु के लहू से, उसके बलिदान से। So 1 year, the children of Israel, every year, every family has to offer once in a year one goat or one bull or one whatever it is. और फिर साल में एक बार जो है इजराइल के लोगों को जो है कोई ना कोई पशु या पक्षी So when we या see बकरी the का बलिदान देना covenant, all पड़ता था। the law made there, और जब हम देखते हैं वो वाचा बांधी हुई वो नियम it को was वहाँ पे for लागू once करते in a थे। year they were doing that. और साल में एक बार इसे किया जाता था। Every year they has to shed the blood.
और हर साल जो है खून को बहाया जाता That's था। why we see every time, Kalubai, they will cut one bakara and many other things like in Calcutta, in Maharashtra, they will cut chicken and bakara and all other things. और बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि जैसे लोग जो है ये बलि चढ़ाते हैं भेड़ और बकरियों को। But Christ did not die in the city of Israel. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है He इस्राएल went के out of the शहर में gate ही and he मरे। was killed there. लेकिन वो क्या किए, गेट के It बाहर is जाके written वहां in पे Hebrews मारा। 13 chapter 12th verse. और हिब्री की 13वें अध्याय 12वें And वचन में because ऐसा of his लिखा है, blood, और उसके लहू के वजह by से faith, Lord Jehovah, और विश्वास of के God the द्वारा Father, हमारे पवित्र पिता help you and me to be delivered forever. तो मदद किया हमें ताकि हमें जो है छुटकारा So मिले। the blood of Jesus Christ has saved your life and my life, not for 1 year, but from eternity to eternity. और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे जीवन को बचाए, एक साल के लिए नहीं लेकिन And अनंत that's काल why तक। last Sunday we heard that Jesus Christ is same yesterday, today, and forever same. Yesterday he did that thing, today he is doing, and tomorrow he is doing for eternity to eternity for your life and my life. और इसलिए पिछले रविवार जब हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और आने वाले कल में भी वही है और वही कार्य कर रहे हैं। And in the when most holy place, the blood was sanctified. और उस परम पवित्र स्थान में उस लहू को जो है छिड़काया जाता था। And he took the whole world's sin. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत का जो है पाप ले And लिया। he did not allow the animals to be offered. He himself offered for your life and my life once for all. He was a sinless man. और उन्होंने एक बार ही अपने आप को जो है बलिदान दिया हमारे और आपके लिए। Secondly, he was an example in this world. He did not have any guile, any sickness or any accusation in this world. और फिर वो एक उदाहरण के तौर पे है इस दुनिया में, उनमें कोई भी बीमारी कुछ भी गलत बात नहीं थी। And he was an ideal person, an example when he stayed there. और एक उदाहरण के तौर पे जो है हमारे सामने इस पूरी जगत के सामने है। And because of his blood, you and I, we can be justified. Romans 5 chapter 9 verse. और उसके लहू के वजह से जो है हमारा न्याय हो सकता है। We are justified by his blood and we are saved from the wrath of God to come. और हम उसके लहू के द्वारा जो है बचाए गए हैं। रोमी 5:9 में ये लिखा है। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे। Ephesians 1:7 also. Here we see the day of the judgment of God is of wrath. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का जो न्याय का दिन है वो It is of cruel. बहुत क्रूर है It is so much darkness. और बहुत अंधकार से भरा People हुआ will है। say, let the mountain come on us, but the mountains will disappear. और लोग कहेंगे कि ये पहाड़ जो है हम पे आके टूट जाए, But लेकिन the पहाड़ blood of गायब हो Jesus जाएगी। Christ has redeemed you from the wrath of God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू ने जो है हमें बचाया है प्रभु के उस क्रोध से। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Hebrews 9 also 12 to 14. All these verses you write down and you study when you go back home. और ये सारे वचन हम लिख के रखेंगे और हम इसके ऊपर मनन करेंगे जब हम Because घर में we are जाएंगे। going to go for our marriage day. क्योंकि हम हमारे उस शादी के दिन के लिए जो है Or जाने when the वाले हैं। death will come, we have to be prepared. या तो फिर जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। So the blood of the animals are physically they are going to clean you. और जो पशु पक्षियों का जो लहू था वो शारीरिक रूप में But by हमें the शुद्ध Spirit करेगा। we can see the blood of Jesus has sanctified you for eternity to eternity, right? लेकिन आत्मिक रूप में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें अनंत काल The तक के लिए physical, शुद्ध किया है। once upon a time you were dead and you were working for the dead spare works of the flesh.
और एक समय पे हम जो है मरे हुए थे और हमारे शरीर के लिए But जो है when हम you and कार्य I करते थे। become the child of God by faith, the blood of Jesus has made you and given you eternity to eternity, the life and redemption. और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो जो विश्वास के द्वारा जो है हमें उस अनंत काल का जीवन की प्राप्ति हुई। What प्रभु is the यीशु मसीह teaching के नाम about, के you द्वारा। know, the teaching nowadays about grace? Prosperity is there too much in the church. और अभी सिखावट क्या हो रही है कलीसिया में ज्यादा कृपा और जो है प्रॉस्पेरिटी की। But Hebrews 13 and 13 verse is, what is it written? लेकिन इब्री की 13 वचन में क्या लिखा है? Go to that outer gate without joyful dancing, rejoicing. और उस गेट के बाहर कैसा जाना है? मलयालम में सब में पढ़ो, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कौन सा है सब में पढ़ो। इसलिए आप उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाद उसकी निंदा लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हाँ, he is take his reproach, take his disgrace. और जो है उनकी निंदा को लेकर मराठी मध्ये वाचलं? तर आता आपण त्याचा अपमान शोषित तळाबाहेर त्यांच्याकडे जाऊया. Today, if I correct any brother or sister in the church, आज अगर पासवान किसी भाई या बहन को जो है सही बातें बताते या ताड़ना देते unless and हैं until I call them and ask forgiveness, they will never come back to the church. और जब तक पासवान खुद होके उन्हें फोन करके उनसे But क्षमा God नहीं is मांगते telling तब us, तक वो नहीं आते। लेकिन प्रभु Rejoicing, क्या कह रहे हैं? dancing, joying, go to that outer place. लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? नाचते या गाते See, हुए उस आउटर गेट की You ओर know जाना है। what? You have to understand what is the meaning of Bible. और हमें समझना है कि पवित्र शास्त्र का What अर्थ Jesus क्या है। Christ told, if you want to be my disciple, तो प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे चेला बनना चाहते हो तो क्या What is करना saying? पड़ेगा? take my cross. And what is the cross, as I told you last Sunday? और अपने क्रूस को उठा के चलना है। रंदा is there. रंदा माहिती आहे ना? क्रॉस बनवायला रंदा लागतो, छन्नी लागती, हातोडी लागती, खिळे लागतात, ते काढा लागतं. इट्स पेनफुल, क्रॉस इज पेनफुल. और जो क्रूस है वो बहुत दर्द देता है। Becoming like Christ Jesus is very, your husband will accuse you, your wife will accuse you, your children will accuse you, your church members will accuse you, your leaders will accuse you. They will always be against you. But that is the molding what God wanted in your life and my life. और प्रभु यीशु मसीह के समान बनना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर लोग हर जगह जो है आपको ताड़ना और And निंदा that's why करेंगे। book of Hebrew, right from the creation, he is telling Christ is supreme about everybody. और इसलिए इब्री की किताब में ऐसा लिखा है कि निर्माण सृष्टि के निर्माण He से compared पहले Christ सबसे with the ऊपर है। angels. When we read, study properly the book of Hebrew. और अगर हम इब्री की किताब को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उनका जो तुलना है देवदूत He से किया compared गया है। Christ with all the prophets. और जो प्रभु यीशु मसीह की तुलना है सारे He भविष्यवक्ताओं compared से Christ की with है। every human being in this world. और हर मनुष्य के साथ जो है And तुलना he is की telling गई he है। has been supreme most. He is above every name. His name is above everything. Nobody can compare with him. Therefore we have to follow him 100%. तो इसलिए ऐसा उसके बाद में ऐसा कहा कि उसकी तुलना किसी से भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे So ऊपर और he is सबसे telling श्रेष्ठ you है। not be joyful, come into my presence, but go with disgraceness and with bearing every reproach what Christ has borne for you and me. और इसलिए वो कहते हैं कि जो है खुशी और आनंद से नहीं बल्कि निंदा के साथ जो है As बाहर आ we जाओ। have studied, last time, follow your leaders. और जैसे हमने पिछले बार सीखा कि Your हमारे leaders जो also अगुवाए should follow उनके like पीछे हो जाओ। what Christ has sacrificed. और जो अगुवाए हैं, उन्हें भी क्या करना है? प्रभु यीशु They, मसीह के पीछे हो they should देना not है। just sit as the pastors or the elders of the church or the deacons of the church. और वो सिर्फ एक पासवान के रूप में या अगुवाए के रूप में Allow नहीं the बैठना people है। to come and serve, but they should serve as Christ himself served the church. और ऐसा नहीं करना है कि लोगों को आके उनकी सेवा करना है लेकिन वो खुद जाके जो है सेवा करने So जैसे that प्रभु is यीशु the मसीह real ने- call in your life and my life. और यही बुलावट है हमारे So he's जीवन talking में। about Christ who has overcome and everything is under his feet, as we read Ephesians 1st chapter last time, that everything is under your feet and my feet. What Christ Jesus has said on the high, and then he's sitting next to the God the Father. और जैसे हमने पिछले बार पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो दाहिने हाथ पे बैठे हैं अपने पिता के और उन्होंने सारी चीजों के ऊपर जो है विजय पाई और वो सारी And चीजें he हमारे has पैर के given नीचे every हैं। authority to you and me.
और सारा अधिकार हमें No दिया power है of darkness can come in the church. और कोई भी अंधकार की शक्ति No कलीसिया evil में नहीं spirit can आएगी come in the church. Even you and I are worshipping the Lord in the spirit and truth. और कोई भी बुरी आत्मा जो है कलीसिया में नहीं आएगी जब हम प्रभु की स्तुति So और we need आराधना to go करेंगे outside. We have to be rejected. Outside place is not for the children of Israel. If people will reject you, people will take you away, and there, if you are going to bear the disgrace and reproach what Christ has followed, you are going to be lifted up and will be seated next to Jesus Christ as He has promised. और हमें बाहर जाना है और अगर हम ये सारी चीजों को जो है सहन करते हैं तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसे ऊपर उठाया जाएगा So this is the thing, the message the Lord is giving me in the last days. और यही संदेश है प्रभु जो And when पासवान की you ओर दे रहा है I am going to follow these messages every week, implement in your life and my life. और ये सारे संदेश को लेके सुन के जो है Last week हमारे also जीवन we में don't लागू करेंगे implement, be practical or be an example. Last Sundays we have heard about this और message. पिछले रविवार भी जब भी हमने संदेश सुना तो हमने ये कहा कि इसे लागू करना है हमारे When you जीवन will be the में lighthouse wherever you go. और हम जहाँ पर भी जाएंगे हम उस In प्रकाश your को लेके office you will be चलेंगे the lighthouse. Where in your business you will be the lighthouse. और हमारे ऑफिस में हम वो प्रकाश लेके चलेंगे हमारे And you will कार्यस्थल shine में like Christ Jesus. और फिर हम प्रभु यीशु मसीह Because के जैसे every चमकेंगे। day Bible is telling, as in Hebrews we have written that you are dying for your flesh. और क्योंकि इब्रिस में जैसे लिखा है कि हर रोज जो है हमारे शरीर के लिए हम मर रहे हैं Because we are not dying for our flesh, the flesh comes out at the right time. और ये क्योंकि हम हमारे शरीर के लिए मरे नहीं है इसलिए वो सही वक्त पे वो बाहर आ जाता है Till that time it is in coma. और उस समय तक जो है वो कोमा में है And the devil is, putting you in coma by giving sedation. और फिर शैतान क्या करता है हमें कोमा में डालता है But उस people of बेहोशी God की are praying दवाई for you देके। and me. और जो लोग जो है In your backsliding experience. और जो लोग पीछे चले गए आत्मिक जीवन So में I'm telling you, it is a related example. और ये जो है उदाहरण And the devil जोड़ता is है giving you sedition. और फिर शैतान क्या करता है हमें And बेहोशी he is की trapping दवाई you in देता है alcohol, he is trapping you in addiction, he is trapping you in adultery and many sins in your life. और फिर वो क्या करता है हमारे जीवन में बहुत सारे पापों को But the लेके body हमें of फंसा Christ, देता today है we see the churches are empty. और हमारा जो कलीसिया हम देखते हैं The कि churches खाली are है। going to the false doctrine by through different pastors, different men of God speaking on YouTube and all. और फिर YouTube पे जो गलत संदेश आ रहे हैं उनके पीछे जो है पूरी I कलीसिया am जा not रही है worried जो even गलत only सिखावट 5 है। people are sitting here. और पासों को चिंता नहीं है कि अगर यहाँ पे 5 लोग भी Because बैठे I wanted one person, that person should be spotless and wrinkle. क्योंकि पासवान चाहते एक ही व्यक्ति आए कलीसिया में जो दाग विरहित और जुदे Because he is विरहित going रहे। to, he is telling many are called but few are chosen. क्योंकि वो प्रभु कह रहा है कि बहुत लोग को Many बुलाया are गया the है। children of Israel, you and me, but among us only few will be raptured or seen in the kingdom of God. बहुत लोग को बुलाया है, लेकिन उस अनंत के दिन में जो है प्रभु के साथ सिर्फ कम ही लोग जाएंगे। And when we read also Luke 9 chapter 23 and Matthew 16, 24, 25, he's telling if you want to follow me, hate your brother, sister, wife, brother, everybody and then follow me. और लूका की और मैथ्यू की किताब में ऐसा लिखा है कि अगर तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो अपने भाई बहन और सब रिश्तेदार को जो है If you are घृणा करके मेरे 14, पीछे आओ। Luke 14, 26, 27 says, if you do not hate your brother, sister, wife, children, you cannot become my disciple. और लूक 14:26 में ऐसा लिखा है कि अगर तुम तुम्हारे माता पिता और भाई बहनों से घृणा नहीं करते तो तुम मेरे चेले नहीं बन 27 verse सकते। says that if you do not take my cross, you cannot be my disciple. और 27 वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तुम मेरे क्रूस को लेके नहीं चलते तो तुम मेरे चेले नहीं We will हो। read Luke 14 chapter 26 to 33 verse. और लूका की 14 अध्याय 26 से 33 तक Marathi and पढ़ेंगे। Hindi will read. यदि कोई मेरे पास आशीष समझता का? समझता? नहीं, I'm asking. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वर अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Now see the connection of this. Down, read खाली. तुम में Say से this परनवास. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो। 1 minute. You are becoming disciple. और हम जब चेले बनते That हैं means you are building a house in heavenly place, right? तो इसका मतलब ये है कि हम So जगह बना Jesus रहे हैं Christ is स्वर्गीय telling लोग। about disciple and he is connecting with the house what you are building. Do you want to pay the cost? Are you paying the cost to build the house? और फिर Or no? प्रभु यीशु You are मसीह paying the money.
प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे कि अगर तुम मेरे चेले बन रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? घर बांधून बांधून लग्न करून बघ. So you're paying something to build your house, the earthly house. And he's connecting about the discipleship. And I will come to that verses again. आवाज खाली. कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका. या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है. Second thing about disciple is a spiritual warfare with the enemy. और दूसरी बात जो चेले बनने की वो है युद्ध करना We आत्मिक read जीवन only में. one verse, बाइबल बोरो सके टाका. और हम सिर्फ एक ही वचन पढ़ते हैं जहाँ पे But कहता है our कि spiritual, why we are in Christ to build our spiritual house. लेकिन हम आत्मिक जो जीवन है जहाँ पे हम जो है हमारा आत्मिक घर And बना he रहे said, हैं. are you going to not decide how much money you have? और फिर यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि क्या तुम If you are not going to निर्णय prepare, लेने your वाले हो house will be incomplete. कि कितना पैसा जोड़ना है तो फिर अगर Secondly, पैसे there is a कम तो spiritual कैसे होगा? warfare every day in your life. तो दूसरी बात ये है कि युद्ध है Your आत्मिक husband जीवन and में. wife will be your enemy. और हमारे पति या पत्नी हमारे Your शत्रु in-laws will होंगे. be your enemy. हमारे सास ससुर The church members will be शत्रु your होंगे. enemy. और कलीसिया के But if सभासद you leave हमारे the church शत्रु and होंगे. go, you लेकिन will be अगर हम scattered. कलीसिया छोड़ के जाएंगे तो That is the तितर-बितर हो spiritual जाएंगे. warfare you have to do. और यही जो है आत्मिक युद्ध है And हमें what are करना the है. tools? और हमारे पास हथियार क्या है? Not reading the Bible every day and praying. और हर रोज जो है पवित्र शास्त्रों को पढ़ना और On प्रार्थना your करना नहीं है, knees, hearing the voice of the Lord. बल्कि घुटनों पे जाके प्रभु की वाणी को Changing सुनना and है bringing transformation in your life and my life. और बदलाव लाना हमारे जीवन में. Once you do, that is a relation with your husband, dear one. और फिर एक बार हम ये करते हैं तो फिर हमारा रिश्ता बन जाता है हमारे पति के One साथ. girl came to me. एक लड़की आई पासवान के That पास. only she has seen the proposal. उसने क्या किया, सिर्फ जब उसे शादी So when करना we था, were sitting, she and her mother came. वो और उसकी माँ आई यहाँ पे. And nothing is there. Only somebody has told, okay, this is the boy and that. और सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा एक लड़का है. So we were sitting here and this girl came when a call came from that boy. और फिर वो लड़की यहाँ पे बैठी थी और फोन आया उस Half लड़के an का. hour, 45 minutes she is talking here only. और First time talking. पौने घंटे तक जो है वो लड़की उससे बात करती रही, पहली बार ही बात How करती many रही. minutes we are talking with your lover, that is Jesus Christ. और हम कितना समय जो है हमारे प्रभु यीशु How मसीह जो many हमारा hours प्रेम से not बात reading the करते हैं. Bible and praying, pray for family and not I'm talking. How many hours you are talking and chatting with your lover. और ये इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि हम कितने देर प्रार्थना करते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं. And then he is going to reveal you many things. और जब हम प्रभु से बात करेंगे तो बहुत And सारा what I am प्रकटीकरण preaching, हमें many मिलेगा. people will not like this preaching. और जब पासवान ये But संदेश when बांटे you are बहुत going लोगों to को be पसंद नहीं knitted आएगा. with Christ Jesus, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने you will रहते start हैं hating parties. तो हम जो है पार्टीज में You will जाना not हमें see घृणा the है. television. हम टीवी नहीं You देखेंगे, will not have celebrate birthdays. हम जो है बर्थडे मनाएंगे नहीं. That will bring transformation in your life, spiritual lessons. और फिर ये हमारे जीवन को बदलेगा. And then आत्मिक when जीवन you में. do, Bible is telling that don't have vain, discussions. और फिर जब हम ये करते, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि व्यर्थ की जो Doing that vain बातें discussions, करना what है, happens because everybody's standards are different. और ऐसे बहस करना जो है व्यर्थ है क्योंकि हर But एक का when स्तर you अलग अलग yourself है. are going to sit in the presence of the Lord, you will understand the warfare, what is happening as a disciple. You are going to build your own house and you will require what is required for your house. और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आत्मिक युद्ध कैसे है और किन चीजों की हमें जरूरत है. हाँ, खाली क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो See, again he is telling what? He is ending here. If you are not going to sacrifice everything, you cannot be my disciple. और यहाँ पे अंत कैसा किया गया है कि अगर तुम सब चीजों का बलिदान नहीं If you are करोगे तो तुम मेरे चेले Christian, नहीं हो. most of the thing, I like to do funeral. और पासवान को सबसे अच्छी बात करना क्या है कि More, फ्यूनरल more than the marriages also, because marriage people are not ready to listen. और शादी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ्यूनरल में क्या होता है कि लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, Because शादी the नहीं person is सुनते, dead. क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ And पे people are मर गया है talking good about that person. और वो व्यक्ति के But बारे if में that बहुत अच्छी अच्छी बातें कर person, रहे if हैं. the truth is telling, the word of God goes there.
लेकिन क्या होता है वहां पे जो है प्रभु का सही संदेश जाता I है। always pray, God give me one soul in the one funeral. और पासवान हमेशा ये प्रार्थना करते कि फ्यूनरल They में may जो not एक attend our आत्मा- church, but you save that soul somewhere, let them go. और पासवान कहते कि वो हमारी कलीसिया भले ही ना आए Because in लेकिन these उनको last बचाया days, जाए। you and I, we should know our spiritual standard where we are standing. और आखिरी के दिनों में हमें पता होना चाहिए कि हमारा आत्मिक स्तर कहाँ पे है। So that's why in our church there is no watch. We should not watch and come. You know, we can start at the right time, but there is no end in the presence of the Lord. We can see, worship the Lord in truth and spirit, whether it is 1 hour, 2 hours, 3 hours. और इसलिए हमारे कलीसिया में जो है हम घड़ी पहन के नहीं आएंगे, हम समय पे शुरू करेंगे, लेकिन अंत कभी होगा ये पता नहीं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में जो है चलते ही जाएंगे। So, Dhara complete. So he last time also he is telling last verse, you know, if you want to pay, you have to take everything, you have to sacrifice all these things in your life. Prepare to build your own house, or the day of the marriage, or the spiritual warfare as a disciple. और आखिरी में भी यही लिखा है कि अगर मेरे चेले बनना चाहते हो तो सब चीज का बलिदान करना है और हमें Hebrews तैयारी first करना chapter है। and 10th verse, if you read. इब्री की Hebrews 11:10 11वें अध्याय और 10वां वचन हम पढ़ेंगे and 11:16 also. और 11-16 भी हम पढ़ेंगे। कारण पाये असलेल्या व देवाने योजलेल्या व बांधलेल्या नगराची तो वाट पाहत होता. Yeah, you are building a house where? हम हमारा घर कहाँ पे बना रहे In हैं? English also in Hindi. Hebrews 11:10 and 11:16. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and the builder is God. Architect and builder is Jesus of your life and my life. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बनाने वाला वो So he is telling, if you want to be my disciple, you know, start building a house. और वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो अपने घर को And the बनाना शुरू architect करो। is Jesus Christ. The foundation is Jesus Christ. Everything is Jesus Christ, right? और उस घर की नींव प्रभु यीशु मसीह है, बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। 11:16 also. Instead, they were longing for a better country. They were longing for a better country. This is a temporal privilege. क्या कहा है? Which is that journey? Pilgrimage. What? Which is that book? Pilgrim's Progress. Pilgrimage. You know, our journey is temporary in this world. और हमारी यात्रा जो है कुछ ही क्षणों के लिए इस दुनिया में। Read. A better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. God is preparing a city for you and me. और प्रभु हमारे लिए एक शहर बना रहा है। Even 1 Peter 3rd chapter 10 to 13 verse. और पहले पत्रुस 3रा अध्याय 10 से 13 में भी हम पढ़ेंगे। 2 Peter 3:10 to 13. दूसरा पत्रुस 3:10 से 13। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करे। The home of righteousness, you have to be prepared. For other people, all this distraction will take place. और हमें वो घर बनाना है जो धार्मिकता से है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है ये सारे जो है राह से भटकने वाली चीजें हो। So, you're understanding, you and I, we are preparing a place in heaven. और हम और आप जो है एक जगह बना रहे स्वर्ग में। And for other people is the place of distraction, place of horror, place of cruelty, place of cursing. और दूसरे लोगों के लिए क्या है, वो नाश की जगह है और स्तुति की जगह है, ये सारी चीजों की जगह है। And what is there? And even Revelation 21:2. और प्रकटीकरण 21:2 में भी ऐसे The holy city, New Jerusalem, which is coming down from heaven. और जो पवित्र शहर है यरूशलेम वो नीचे आ रहा है। It is prepared as a bride, a beautiful dress for her husband.
और एक दुल्हन के समान जो है उसको सजाया गया So है। today you and I, we need to do that thing in our lives. और आज हमें और आपको जो है ये चीज हमारे जीवन में करनी है। The duty of the believer is first, और जो विश्वासी है उनका धर्म क्या है? go outside the gate bearing disgrace and reproaches. और गेट के बाहर जाके जो है उस निंदा को पा लेना। Prepare yourself in the as a heavenly city. और फिर खुद को तैयार करना उस स्वर्गीय स्थान के लिए। And that so that you and I in heaven we will be there. ताकि हम और आप जो है स्वर्ग में मिल पाए। And thirdly, that give praises and thanks to the Lord. और तीसरी बात यह है कि प्रभु को स्तुति 15 और verse धन्यवाद in दें। Hebrews 13:15 that give praise and worship and thank the Lord. और हिब्रू 13:15 में ये ऐसा लिखा है कि हमें स्तुति और धन्यवाद प्रभु को देना है। That go outside the camp with reproach and disgrace. कि हमें बाहर जाना है निंदा में और निंदा से बाहर Secondly, जाना। build your heavenly home. और दूसरी बात कि हमारा जो है स्वर्गीय घर बनाना Thirdly, है। give praises and thanks. 15 वचन। और तीसरा जो है स्तुति और धन्यवाद देना। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Always give thanks and praises in every situation. That is the third thing we have to do as a believer. और तीसरी बात यह है कि हर परिस्थिति में जो है प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देते रहना है। And fourth thing, that verse 16, do not try to do good, but try to do good things always. और फिर 16वें वचन में चौथी बात यह है कि हमेशा अच्छा कार्य करते रहना। And the fifth thing is that share what you have with the people who are in need. और फिर पांचवी बात यह है कि हमारे पास जो भी है उन लोगों के साथ बांटिए जिन्हें जरूरत है। और 16वां वचन हम पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान हमसे प्रसन्न होता है। मराठी? चांगले करण्यास व दान करण्यास विसरू नका, कारण अशा यज्ञांनी देव संतुष्ट होतो। Matthew 5:16 if you read. मत्ती 5:16 हम पढ़ेंगे। And 1 Timothy 6:18. और पहला तिमोथी 6:18 भी हम पढ़ेंगे। Matthew 5:16, 1 Timothy 6:18. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। The light of Jesus, when it will shine, they will tell that he is a Christian person, he is the Christian people. और जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम में से चमकेगा तो लोग कहेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। One brother was telling his testimony. एक भाई जो है साक्ष्य बांट रहे थे। That person doesn't like me to take his name in the church. और वो व्यक्ति को पसंद नहीं कि उनका नाम कलीसिया में So लिया he जाए। is working for this thing, government people, as a businessman. और एक व्यवसाय करते हैं वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लिए। One this thing officer talked with some other officer in other department. और एक ऑफिसर जो है दूसरे ऑफिसर के साथ बात की जो And he अलग told that डिपार्टमेंट that tall Christian man, I wanted that he should get, I wanted to give him a job. और फिर उन्होंने ऐसा कहा कि जो ऊंचा जो मसीह जो बंदा है उसे एक कार्य देना So चाहता people हूँ। should know that you are a Christian person. और तो लोगों को ये जानना बहुत The जरूरी है Christ कि आप nature मसीह should के be लोग in हैं। your life. तो हम में जो है प्रभु They यीशु should मसीह का not tell स्वभाव your होना name, but चाहिए। they should call that you belong to Jesus Christ. उन लोगों को जो है हमारे नाम से हमें पता In नहीं होना चाहिए, Matthew लेकिन 5:16 also उन्हें it कहना says चाहिए कि that मसीह the Father will be glorified because the light of Jesus is shining on your life. और मत्ती 5:16 में ऐसा लिखा है कि पिता का नाम जो है 1 Timothy 6:18 also. और पहला तिमोथी 6:18 में भी वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। English? Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. It is a law. और एक नियम है। Is it a law? क्या ये नियम है? No. नहीं। But in New Testament there is a commandment. लेकिन नए करार में एक न्याय है। Old Testament there is law. पुराने करार में न्याय है, नियम है। You know there is a signal, traffic signal. और ट्रैफिक में हम सिग्नल देखते हैं। Whether to stop or not, there is a law to stop when it is red, right?
और नियम है कि जब लाल बत्ती आती है तो हमें रुकना है। But there is no compulsion that you have to stop there. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें रुकना ही If you है। are caught, you have to pay fine. अगर हम पकड़े जाते हैं तो But in हमें New फाइन भरना Testament, है। Jesus is telling, I command you to do this, I command you to do this. There is commandment, the law has been abolished. लेकिन नए करार में क्या है? आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये आज्ञा And देते in हैं कि Timothy, ये what करना is है। telling, verse 6:18, I command them to do good, to be rich in goodness पहले and deeds. 6:18 में ऐसे कहा है कि मैं आज्ञा देता हूँ कि वो अमीर बने। And you have to be richness in money. क्या हमें अमीर I पैसे से have बनना 10 है? flats, मेरे पास 10 2 फ्लैट है, Mercedes and 2 cars. 2 मर्सिडीज, 2 कार। I have so many properties, farmhouse and everything. He's telling, I don't want that. मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी But है, he's प्रभु कह रहे हैं कि telling मुझे Israel चाहिए। or the disciple has to be rich in doing good. लेकिन वो ऐसे कह रहे हैं कि इजराइल के लोग जो है अमीर बनना है अच्छी चीजें करने में, Deeds and to be generous and willing to share. और उदार बन के जो है उनमें वो इच्छा होनी चाहिए। Titus बांटने के 2nd लिए। chapter 7th verse also. In everything set them an example और टाइटस के दूसरे अध्याय 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि हर by, एक चीज में by उदार doing what करो, is good in your teaching, कि हमारी सिखावट के द्वारा अच्छी चीजें करना, in your teaching, हमारी सिखावट में, show integrity and seriousness. और उस गंभीरता को दर्शाए। Here also is telling, be an example in doing good. और यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक उदाहरण बने रहना है हमें। So Hebrew 13th chapter is totally, how a believer has to lead their life. और इब्री 13 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक मसीह को अपना जीवन कैसे 13th व्यतीत chapter करना है। 1 to 16th verse we have come. और 13वें अध्याय के 1 से 16 तक Now हम the आए हैं। 17 onwards we are going to read afterwards. और 17 से आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। 17 again he is telling that you have to follow your the person who is teaching you have to be under that person. 17 days है ना? और 17वें में ऐसा है कि हमें अगर चेला बनना है तो जो हमें सिखा रहा है उसके अधीन रहना Before that है। also he told, but this and this is totally slightly different. और पिछले बार जो हमने पढ़ा है और ये जो है थोड़ा सा अलग है। We will study in the next Sunday. और आने वाले रविवार में हम इसके So बारे today में I पढ़ेंगे। request you, take this word of God very, very seriously. तो आज पासवान विनती करते हैं कि इस वचन को बहुत गंभीर रूप में Some लें। people say once you are saved forever. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक बार तुम बचाए गए तो हम But if you read in Ezekiel, लेकिन अगर हम एजेकियल की किताब पढ़ते हैं you can understand that thing. तो हम उस बात को समझेंगे। They will again quote, Old Testament is God is abolished of Old Testament. और ऐसे कहेंगे कि पुराने करार जो है उसको लेके कुछ बातें ऐसे करेंगे जहाँ पे बहस हो या झगड़ा हो। That's why Bible has taught everything right from Genesis to Revelation. और इसलिए पवित्र शास्त्र जो है हर एक चीज सिखाता है उत्पत्ति And से लेके if you will not be ready, the people from highways and byways, God will send His servants there, and they will come and they will be dressed for the days of marriage. और अगर हम तैयार नहीं है तो जो लोग उस हाईवे पे या बाईवेज पे है उनकी ओर जो है प्रभु अपने सेवक भेज के उनको Today I तैयार request करेंगे। you, church, take this very seriously. Just don't be rituals by reading the word every day, praying every day, but trying to talk with your lover. Ask what you wanted me to do, how I will serve you, how I will be in soul, how I will be an example. God will start talking to you. और पासवान चाहते हैं कि हम हर एक जन जो है परंपरा के रूप में जो है पवित्र शास्त्र ना पढ़े बल्कि प्रभु से बैठ के जो उसके साथ बात करे और ये पूछे कि मैं कैसी तेरे सेवा करूं, कैसे मैं किसी आत्मा को तेरे राज्य में लेके आऊं, और प्रभु हमसे बात करेगा। Start talking to you. How 2 hours, 3 hours will go, you will not understand. और प्रभु फिर हमसे बात करना शुरू करेगा और 2 घंटे 3 घंटे कैसे And जाएंगे he पता will भी नहीं start चलेगा। giving you visions, he will start giving you dreams. When you will come in the church, you will tell this brother, this is the problem you have, sister, this is the problem, and their lives will be changed because the Holy Spirit is going to work through your life and my life. और फिर प्रभु हमें दृष्टि देगा और दृष्टांत भी देगा, सपने भी देगा, और फिर जब हम इसे लेके कलीसिया में आएंगे तो हम जो है भविष्यवाणियां करेंगे और भाई और बहनों को बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। Today we will close eyes आज हम अपने आंखों को बंद and we करेंगे will see our life. और अपने जीवन की ओर देखेंगे। Even I'll tell you, my life is a filthy rags. My clothes, spiritual garments are filthy rags.
और पासवान कह रहे हैं मेरा भी जीवन जो आत्मिक जीवन है उसके वस्त्र I जो still है have बहुत anger, I मैली still है। have bitterness, I still have unforgiveness in my life. वो कह रहे हैं कि अभी भी मेरे में अक्षमा है, कटुता है। It is written in Malachi 3rd chapter 2nd and 3rd verse with what we read today. और मलाकी की तीसरे अध्याय में दूसरा और तीसरा वचन में जो Who हमने can पढ़ा stand था, when the Lord will appear in His glory? और कौन खड़ा रह सकता है जब भी प्रभु अपने महिमा में प्रकट होगा। He will be like refiner's fire. वो फिर एक आग के जैसा होगा जो हमें You शुद्ध know, करेगा। they are with the what do you call it? The iron is refined with the fire. और वो अग्नि जो लोहे को भी पिघलती है, He is उस like the उस launderer's प्रकार का, soap. और फिर एक धोबी के साबुन के जैसा। You know, when soap is applied to you, it is so dangerous. और जब साबुन हम पे लगाया जाता है तो कितना खतरनाक होता है। And as the launderer's soap. और एक धोबी के साबुन के जैसा। And Bible is telling He is going to sit and He is going to refine. और फिर पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो बैठेगा और फिर हमें शुद्ध As a करेगा। and a purifier of silver. जैसे चांदी को शुद्ध करता है, He will purify the sons of Levi. और लेवी के जो बच्चे हैं उन्हें शुद्ध करेगा। You know, you and I, we are the sons of Levi. और आप और हम जो है लेवी के बच्चे हैं। And purge them as gold and silver. और फिर सोना और चांदी के रूप में जो है ढालेंगे। And why? That they will offer themselves क्यों? क्योंकि हम जो है खुद को अर्पित कर पाए an offering of righteousness. एक धार्मिकता के चढ़ावे के In समान। our board there is Malachi 3:2 and 3 is written. और यहाँ पे पीछे जो बोल So you and I, we are the Levi. 2-3 और हम और आप एक You and I, we have to be gold. He doesn't want iron, he doesn't want wood, he doesn't want hay, he doesn't want mud. But he wanted you and I to be like refiner's fire. और प्रभु चाहता है कि हम सोने और चांदी के समान बने, ना कि किसी मट्टी के समान या तो फिर किसी So that you will pour out as a righteous sacrifice in front of the whole universe. ताकि हम हमारे धार्मिकता को जो है एक अर्पण के समान जो है पूरी दुनिया के सामने We will लेके close आए। our eyes and be in the presence of the Lord. अपने आंखों को बंद करके जो है प्रभु की उपस्थिति